Hello student, welcome to my 32th lecture of measurement of temperature. The subject is instrumentation and measurement. So, today we have discussed about the how will measure the temperature. We can discuss in earlier lectures the devices of temperature measuring devices, we can discuss already. Now, we can focus in the temperature measurement. So, today's lecture we can discuss general concept of temperature, what is temperature and what are the methods for measuring the temperatures. So, this is the general concept for the temperature measurement. Actually everybody knows the temperature, and in the corona period we are very familiar with the temperature. So, there is we can measure the body temperatures, but the temperature is also the measure hotness and coldness of body. We can compare in general terms, we can consider the hotness and coldness of the body, that is known as temperature. Temperature is simply average measure of kinetic energy for the particles of matters. The more is there kinetic energy, the higher the temperature of the body or object, any body, any system. Again I am saying the kinetic energy for the particles of matter, the more the kinetic energy, the higher the temperature. So, how heat flow? Before going to the measuring the temperature, we can concept the basic heat flow. What is heat? So, heat is the another difference in the temperature. Heat energy flow from one body to another body, that is the temperature difference between the two objects or two body. Heat transfer from warmer object to the cooler. Always temperature is also transfer from hotter to cooler, and the heat is also heat transfer from warmer to cooler object, that is from higher temperature. There is the higher temperature to lower temperature, or you can say. So, there is a mention, it continues with both objects gain same temperature, that is equilibrium is achieved. When you consider, you measure, that is the equilibrium. For example, when you hold a cup, any warm up cup or any warm up glass, then you just touch it, then you had it. When you are starting hotter, when you collecting the same cup, hotter cup, then you feel that heat is transferred from cup to your hand. You can stable for the in equilibrium state. That means the initially you the feeling that cup is very hot, but after that when your cup energy transferred to the hand energy. Why? Because hand is cooler and cup is hotter. So, that is your energy from heat transfer from where warmer to cooler. जो हाथ is cooler and cup is warmer, so the heat is transfer. So, neither body process heat, but a body has only internal properties like temperature and internal energy due to the presence of your heat during the any process. This is the that you can see the internal energy, and the measure of the heat is known as in joules. We can consider the joules. The quantification of heat due to change in temperature is called the calorimetry. These are the basic terms, but actually we discuss about the temperature. So, before heat I cannot understand the temperature. So, there is the parameter for the heat, and now coming to our topic, that is the measurement of temperature. So, any temperature is not in calibrated in direct. So, we can calibrate it to the variety of temperatures. So, when we measure temperature, I want to measure this temperature, how can you measure? So, when we measure we are using the different units. The main 3 units is the Fahrenheit scale, and another unit is the centigrade, and this is your Celsius, or sometimes you know the centigrades, and this is a Kelvin. So, these are the 3 main units which are commonly measure the temperature. Generally we use the both. Kelvin is rarely for the calculation purpose. The first one is degree आपका Fahrenheit scale, and the Celsius scale, that is very important. We are using for the normal temperature measurement in this units. So, here you can see that each scale there is different references point and uses the different set. All they have are different references, a different division based on. Here you can see the there is a 2 temperature scale. One is Fahrenheit thermometer and another is Celsius thermometer. The thermometer is the basic unit for the temperature measurement.
For industrial purpose is not very suitable, but normal in general I am discussing just about the before the body temperatures or a small scale temperature or domestic temperature, then we prefer the thermometer. So, thermometer is the basic unit for the temperature measurement, but I am again repeating, is it not perfect for industrial measurement. For industrial measurement we are using dedicated temperature sensing devices. We earlier discussed thermocouples, thermistors. So, here is the we discuss the temperature thermometers. So, you can see here is the Fahrenheit thermometer and this is the Celsius. So, in both thermometers the initial value and middle value, you can see the water boil 212 degree Fahrenheit. Boiling temperature of water is in which unit? Fahrenheit. This is the 212 degree Fahrenheit and the normal body temperature is 98.6 degree Fahrenheit and the water freezing. So, freezing point is 32 degree Fahrenheit. These are the three parameters for in the which unit? This is the Fahrenheit thermometer. Now, coming to the Celsius unit, we are using maximum Celsius unit. This is the more usable temperature thermometer. 100 degree centigrade is water boiling, 37 degree centigrade normal body temperature and 0 degree centigrade that is your water freezing. So, these are the some terminologies we are using for the general purpose and these two types of thermometer generally used. Best is we are using or you heard about the Celsius thermometer. This is the common purpose thermometer. Now, coming to the methods of temperature measurement. Before these slides, all before slides are the basic concept for the temperature measurement. What is the purpose of temperature measurement? How can you convert heat to temperature and how will be the measure in general purpose? Because temperature is available everywhere. You can use not only dedicated for the instrumentation or not for dedicated for on the your industry. This is depend on the general purpose measurement. That is why using we discuss the thermometers. So, there are the several material whose properties change with the temperature. Lot of things, lot of measurement we are using the temperature measurement. So, there is a main three type temperature measurement, that is the mechanical instruments, electrical instrument, optical instruments, or you can say the methods for the temperature measurement, non-electrical method, electrical method and radiation method. Electrical method all we discussed in previous slides where we discuss the temperature devices or you can say the temperature transducers, but the radiation method we never discussed in previous slides and non-electrical there is some manometers we are also discussed in the time of the temperature devices, yeah, temperature transducers. So, here we focus which are not discussed in prior. तो फिर हेयर हम क्या डिस्कस करेंगे जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया है उसको वी कैन कंसीडर हेयर, तो हमने उन्हीं को ज़्यादा फोकस करेंगे और अगर पहले के आपको देखना है या इलेक्ट्रिकल मेथड्स हैं या नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड है, मैनोमीटर्स आपका नॉन इलेक्ट्रिकल में आता है, इलेक्ट्रिकल में थर्मोकपल, थर्मिस्टर्स, तो टेम्परेचर गेज, तो यू कैन प्रेफर द प्रीवियस स्लाइड्स. Now, first we are moving to the non-electrical methods. The non-electrical method are used the temperature measurement or the based on the change in physical properties of a substance. When the substance is subject to temperature, the following liquid gas temperature sensors. First one is your liquid in glass thermometer, studied, liquid in filled system thermometers, studied, vapor pressure thermometer, bimetallic thermometer and solid rod thermometers. Here we discuss only liquid gas thermometer, liquid filled thermometer in prior, but not discuss never the solid rod thermometer. So, in the above two first we can consider the thermal expansion of the liquid. When temperature is used measure temperature, whereas a vapor pressure thermometer, the temperature measured by the measure change of vapor pressure in the bulb. When you can see the different type of devices for the general purpose temperature measure. This is the basic thermometer, you have seen this is the digital thermometer, this is the handheld thermometers, this is the hanging thermometers. So, these are the your different type of general purpose thermometers. All thermometers is in category of your non-electrical methods. Now, we coming to the electrical method, mostly the industry prefer this type of electrical method and radiation methods. In general purpose, we all prefer the thermometers. You can say the basic measuring device or you can say the basic temperature measurement system is your non-electrical methods, that is your thermometers. A type of thermometer is a lot of,
and manometers. Sometimes using the manometer industry, we prefer the manometers. So we have discussed priorly lot of manometers, bimetallic thermometers, solid state thermometers. That means you can use the based on the electronics, transistor base or diode base. So here we discuss the main हमारा temperature measurement है, that is your electrical measuring device. Then is consider the which pair of resistance, voltage, frequency. ये हम we can receive and convert it to the which parameter, that is in the टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ मिलकर हम इसको क्या करते हैं, इससे एडवांटेज ये है कि वी हैव द दैट टेम्परेचर मेजरमेंट वी कैन यूज फॉर द accurate temperature and speedy temperature measurement, and in you can use this temperature into the remote अलग. We can measure this temperature. आप इस टेम्परेचर को यहाँ पे मेजर करके आप इसको रिमोटली कहीं पे भी इसका सिग्नल ले जा सकते हैं. तो वी हैव डिस्कस रेजिस्टेंस थर्मामीटर, दैट इज नोन एज RTD. Semiconductor thermometers, we can discuss thermistors and thermocouples. ये हम पहले के स्लाइड्स में ट्रांसड्यूसर में अलग अलग इसको पढ़ चुके हैं. हमने नहीं डिस्कस किया है वो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल थर्मामीटर. जैसा थर्मामीटर आप देख रहे थे, चाहे वो आपका बायोमेटालिक हो या स्टिफ रॉड हो या सॉलिड रॉड हो, उसी तरह से हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल थर्मामीटर होता है. दिस क्वार्ट्ज क्रिस्टल थर्मामीटर में जो हमारी मेन चीज़ें होती हैं वो होती है, वी कैन कंसिडर द क्रिस्टल. इन हम यूज़ करते हैं एक चीज़ को, एक मटेरियल को, जो कि हमारा किसका नेचर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है. क्रिस्टल हमारे अवेलेबल हैं, वो आपके एक नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं और हमारे सिंथेटिक क्रिस्टल्स होते हैं. तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर करके हम थर्मामीटर को बनाते हैं. दिस इज़ द मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आपके टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अब होता कैसे वो समझिए. एन एलिमेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज. क्योंकि इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो वी कैन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि या तो रेजिस्टेंस, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी कोई भी हमारा वेरिएबल हो सकता है, बट मोस्टली हम क्या इस वेरिएबल को प्रेफर करते हैं, रेजिस्टेंस. तो जब हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करते हैं तो रेजिस्टेंस जो हमारा होता है किसी भी एलिमेंट का, वो तो या तो इंक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर या डिक्रीज करता है. तो जब इंक्रीज करता है तो उसे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, और जब वो डिक्रीज करता है तो उसे हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं. ये डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसड्यूसर में बहुत डिटेल में. तो इस तरह से हमारा जब ये रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है उसको हम कैलिब्रेट कर देते हैं और उसको हम लेते हैं फिर टेम्परेचर के फॉर्म में, चाहे वो थर्मामीटर्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर थर्मामीटर्स हो, चाहे थर्मिस्टर्स हो या थर्मोकपल्स हो. ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप फिगर देखेंगे तो हियर इज़ द योर RTD रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, देन थर्मोकपल, दिस इज़ द थर्मिस्टर, NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये हमारा सेमीकंडक्टर. दिस इज फॉर्म ऑन चिप. ये किस फॉर्म में है, चिप. यही हमने आपको ऊपर दिखाया हुआ है, ठीक है, क्वार्ट्ज को छोड़ के. तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल मेथड्स होते हैं. सारे ट्रांसफर में डिस्कस कर चुके हैं हम. यहाँ पे आई एम डिस्कसिंग हियर द स्पेशली इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल थर्मामीटर. ये पहले डिस्कस नहीं किया है कहीं पे भी, इसलिए इसको अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड, हमने आपका क्या है, देयर इज अ टू मटेरियल इज डिपेंडेंट. वन इज़ योर क्रिस्टलाइन इन नेचर, उसके लिए हमारा सिंथेटिक और या नेचुरल क्रिस्टल वी कैन यूज़. एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर डिपेंडेंट. हैंस क्वार्ट्ज हमने जब इनिशियली आपको स्लाइड में डिस्कस किया था तो आई मेंशन द रेजिस्टेंस आपका, उसके बाद हमने लास्ट में फ्रीक्वेंसी भी मेजर किया था. तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी को रिस्पेक्ट में मेजर करना है देन वी प्रेफर द क्वार्ट्ज क्रिस्टल थर्मोमीटर्स. तो हैंस क्वार्ट्ज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेजर इन द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एट विच द क्रिस्टल क्वार्ट्ज thermometers measure temperature automatically quick with the high resolution. But when you using in the quartz crystal in comparison to other thermometers, bimetallic thermometers, semiconductor solid thermometers, normal thermometers, then we prefer the high response, and we can consider in the automatic. We can put in the quartz thermometer, your temperature is showing directly. So that time you are using the quartz crystal thermometers. ठीक है. How can the construction? You can see that this is the quartz, or just you can just saying as a somewhere chip. आपको एक जैसा दिख रहा है कि एक हमारा एक कोई भी ट्रांजिस्टर है, बट दिस इज नॉट ट्रांजिस्टर, दिस इज आवर क्वार्ट्ज क्रिस्टल थर्मामीटर. उसको हम जहाँ पे लगाते हैं वो किस तरह से हाई रियलाइजेशन टेम्परेचर सेंसिंग क्वार्ट्ज जो हमारा आता है, वी कैन कंसिडर sensing quartz resonator, sometimes is known as resonator, through the which connects with the through the length of cable, its oscillator.
The oscillator located in the main cabinet but can be physically removed as unit permit measuring. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा लगा हुआ है, this is, ये हम कहाँ पे लगाते हैं, in the cabinet. तो we can using in the where is the quartz, where is the crystal? तो inside this body we are using the wafers of the crystals. डिफरेंट क्रिस्टल्स के हम क्या लगाते हैं, वेफर्स लगाते हैं, जिसका साइज होता है 0.01 इंच. ठीक है, इस तरह से हम लगा के इसको कई बनाते हैं. और जो आपको दीज आर द लाइंस, दिस इज नोन एज द प्रोब. ठीक है, ये उसकी जो हम कनेक्शन ले रहे हैं. और क्रिस्टल कहाँ पे है हमारा, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इसलिए इसके अंदर वी कैन कलेक्टेड द वेफर्स. तो वर्किंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल व्हेन कपल्ड द कन्वेंशनल ऑसिलेटर सर्किटरी रिप्लेसिंग द टैंक सर्किट, वी आर प्रेफर द देयर इज सम electronics words, we can use the resonance circuit. So we are using the oscillator whose frequency is controlled by the crystal oscillators. So we are here we converted with the help of the crystal oscillator. क्या कर रहे हैं, we can converting the frequency into temperature. Actual में this is the main parameter. तो समटाइम्स आप कहेंगे ऐसी ज़रूरत कहाँ पड़ जाती है, बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है. आपका हम जनरली जो मेज़र करते हैं, मैक्सिमम मेज़र करते हैं, वो हमारा अगर हमारा कॉन्टैक्ट टाइप है तो हम जनरली चेंज करते हैं रेजिस्टेंस को विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. रेजिस्टेंस बढ़ता है या रेजिस्टेंस घटता है. लेकिन जब हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑथोमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं फ्रीक्वेंसी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, आपके टेम्परेचर में, उसको कैलिब्रेट करते हैं. तो जब फ्रीक्वेंसी वर्ड आएगा तो ऑसिलेटर तो आएगा ही आएगा साथ में. तो यू कैन सी हियर इज द डायग्राम, देयर आर यूजिंग, दिस इज द क्रिस्टल, आपको नहीं दिख रहा है, ये हमारा ऑसिलेटर सर्किटरी है, ये हमारा मिक्सर है. क्योंकि देयर इज अ टू, आपने देखा 2 लेग लगी हुई थी, तो वी कैन मिक्स एंड दिस फ्रिक्वेंसी दिस कैन में, और ये आउटपुट ऑसिलेट मिलता है. इसको हम क्या करते हैं, जो भी दोनों की डिफरेंस आती है, जो फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आता है, उसको क्या करते हैं, उसको कैलिब्रेट कर देते हैं टेम्परेचर में. इंपॉर्टेंट इज द एड कट क्रिस्टल एंड वेरिएबल एलसी कट क्रिस्टल्स. ये टाइप ऑफ क्रिस्टल्स है, अलग अलग होते हैं. इसमें आपका अगर हमारा एड कट क्रिस्टल कहेंगे और जो वेरिएबल एलसी कट क्रिस्टल कहेंगे तो इसके अपने अपने रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है. तो 2 हम डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल यूज़ करते हैं, इसलिए हमने 2 कंडीशंस लगाई हैं. 2 सेम है, एक ऑसिलेटर सर्किट एटी कट के लिए है और एक किसके लिए है, एलसी कट क्रिस्टल के लिए लगा. दोनों का मिक्स करते हैं. मिक्स करने के बाद जो आउटपुट होता है उसको लोकल ऑसिलेटर पे ले जाके क्या करते हैं, उसको हम वेरियस लीनियरली विथ टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हम उस सर्किट को जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसको हम कैलिब्रेट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर. तो ये हमारा बेसिक वो है. आप देखेंगे जो यहाँ पे हमारा जो रेंज होती है विद द हेल्प ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल -80 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. जो हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो हमारा मेज़र करता है -80 से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को ये मेज़र करता है विद एन एक्यूरेसी ऑफ, इसकी एक्यूरेसी भी और से बेटर है, दैट इज़ योर ±0.075 डिग्री सेंटीग्रेड. सेंसिटिविटी हमारी कहाँ तक जाएगी, 1000 हर्ट्ज पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो दैट इज़ वेरी सेंसिटिव. तो जहाँ पे वी वांट एक्यूरेट मेजरमेंट और बहुत फ्लैक्चुएशन नहीं है, वी कैन कंसिडर कांस्टेंट हमें मेज़र करना है, सेंसिटिविटी जहाँ पे बहुत हाई चाहिए, देन वी प्रेफर द क्वार्ट्ज टाइप क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपका थर्मामीटर्स. दिस इज़ अ स्पेशल पर्पस थर्मामीटर. ये जनरली आप ऐसे नहीं देखेंगे, ये स्पेशली पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं. रीज़न यही है कि वी आर यूजिंग हाईली लीनियर आउटपुट. आपका बहुत अच्छा है क्योंकि जनरली जब भी कोई हम प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर टेम्परेचर फ्लो लेवल मेजरमेंट करते हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो लीनियर होना चाहिए, और वो लीनियर आता नहीं है. देयर इज सम नॉन लीनियरिटी, या कुछ दूरी तक वो लीनियर रहता है, उसके बाद जाके वो क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है. तो लीनियरिटी एक हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसके थ्रू हमने क्या किया, ये हमारा जो आउटपुट मिलता है हम मान के चलते हैं, जितने भी हमने डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रिकल में, उसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर हमें लीनियर आउटपुट चाहिए या लीनियर आउटपुट चाहिए, देन वी प्रेफर दिस वन. लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, हाई रेजोल्यूशन ऑफ द ऑर्डर, जो आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्सलेंस, रिपीटेबिलिटी, ये सब हमारा क्या है, इसका क्रिस्टल जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन चाहिए, सेंसिटिव मेजरमेंट चाहिए टेम्परेचर में, देन वी प्रेफर द क्रिस्टल ऑसिलेटर टाइप थर्मामीटर. ठीक है, बट ये लो रेंज में बहुत मेजरमेंट नहीं कर सकता, अच्छा नहीं करता है. लो टाइम कर सकता है, -80 डिग्री तक कर रहा है, बट जो लिमिटेशन है वहाँ पे आपको इसकी लीनियरिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी. क्रिस्टल हैव स्ट्रॉन्ग क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब क्योंकि क्रिस्टल है तो क्रिस्टलाइन नेचर की जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें आके जो इसके
ड्रॉबैक्स हैं, बट ये यूज़ होता है फॉर स्पेशल पर्पज, नॉर्मल पर्पज़ के लिए वी नेवर प्रेफर दिस वन. This is the special purpose. Now coming to the main point, these are the radiation method. ये हमने इसके पहले कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया है टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर्स के लिए, क्योंकि ये बहुत सी जगह हमें ऐसा होता है कि हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं टेम्परेचर का, बट वहाँ पे कोई भी सेंसर हम नहीं लगा सकते. तो इसमें आपके जो इलेक्ट्रिकल सेंसर्स हैं, एट प्रेजेंट सिनारियो वी हैव रिसीविंग द नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, लेकिन वो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप जो हमारे होते हैं, जैसे थर्मोकपल एक आता है यूज़ एंड थ्रू, आप मेजर कर सकते हैं एट ओनली वन टाइम, आफ्टर दैट थर्मोकपल विल बी डिस्ट्रॉय. तो जैसे आप उसको अगर किसी फर्नेस पे फेंकते हैं तो फर्नेस का इंस्टेंट टेम्परेचर बताएगा, उसके बाद उसको दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते. तो बहुत सी जगह जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स हैं वहाँ पे हमें मेजरमेंट करना है टेम्परेचर का, तो हमारे लिए उसके लिए दो ही मेथड बैठते हैं. हम ना वहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं. वो वहाँ पे कोई भी सेंसर वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है. तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना होता है, स्पेशली इन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, योर जहाँ पे फर्नेसेस वगैरह यूज़ होती हैं वहाँ पे, और जहाँ पे मेटालिक इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, दैट टाइम बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जो हम उसमें वहाँ पे कोई भी सेंसर्स नहीं लगा सकते हैं. दैट टाइम वी यूजिंग द रेडिएशन मैथड्स. तो रेडिएशन मैथड यूज़ करते हैं, जैसे इसका नाम है, तो वी आर प्रिफर फॉर द rays, infrared rays, to measure the temperature. Infrared the type of the same light as visible light. अब वो डिपेंड करता है कौन सी इंफ्रारेड हम लेंगे, कैसे लेंगे, पूरा जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, बट जनरली वी प्रेफर द इंफ्रारेड. IR सेंसर हम लगा के उससे क्या करते हैं, जो भी वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे मेजर करते हैं. उस वेवलेंथ को हम कन्वर्ट किस में करते हैं, टेम्परेचर में. तो जो हमारा IR वेवलेंथ है उस आपको सामने दिख रहा है 0.7 to 400 माइक्रोमीटर. दिस इज़ द वेवलेंथ ऑफ IR. तो इस वेवलेंथ पे हम कार्य करके इस कॉन्सेप्ट को लेके हमने जब रेडिएशन मेथड से टेम्परेचर मेजरमेंट की बात की, तो वी हैव अ टू मेथड. रेडिएशन हमारे एफर्ट फॉर द टू एडवांटेज क्या है, पहले तो एडवांटेज रेडिएशन मेजरमेंट की एडवांटेज क्या है, रेडिएशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर टेम्परेचर. तो द टेम्परेचर कैन बी मेजर एट द हाई स्पीड, रेंज ऑफ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, रेंज ऑफ 4000 डिग्री सेंटीग्रेड. आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, थर्मोकपल भी यूज़ करते हैं, बट रेडिएशन टाइप में हमारा क्या होता है, वी कैन देयर इज द टू टाइप, एक होता है इंफ्रारेड पैरामीटर, एक होता है ऑप्टिकल पैरामीटर. तो जनरली वी आर यूजिंग द हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. तो ये हमारे दो तरह के इंफ्रारेड है और ऑप्टिकल पैरामीटर है. तो इंफ्रारेड पैरामीटर्स आप देख रहे हैं अब द रेंज ऑफ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. तो रेडिएशन पैरामीटर समटाइम नोन एज द, हियर वी आर यूजिंग द डिस्टेंस. आप यहाँ अगर यहाँ पे देखेंगे तो वी कैन कंसीडर दिस इज द मेरा सोर्स है, ये हमारा ऑप्टिकल, वी आर यूज द ऑप्टिकल पैरामीटर. किसने देखा होगा ये उसी तरह होता है. तो इसमें वी कैन कंसीडर द इंफ्रारेड पैरामीटर मेड ऑफ द वेयर द स्पेशल पर्पस मटेरियल, PVDF, TGS एंड लिथियम टालनेट TaOA3. इस मटेरियल से हम बनाते हैं, जो यहाँ पे हमारा लेंस लगा होता है. फिर जो हमारा सपोज जो भी हमारा टेम्परेचर डिवाइसेस है, एब्जॉर्प्शन स्क्रीन होती है, उसको लेके करते हैं. और ये हमारा क्या है, सोर्स है. जो भी सोर्स है हीटेड है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, फिर इस लेंस से मेजर विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशंस. अगर ऑरेंज कलर है तो इतना टेम्परेचर होगा, लाइट ऑरेंज है, ग्रीन ऑरेंज, इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड पैरामीटर. ये हमारा ऑप्टिकल पैरामीटर, उसके पहले में रेडिएशन ज़्यादा, ये भी हमारा ऑप्टिकल पैरामीटर है. यहाँ पे भी यही करते हैं. ये मेरा हॉट ऑब्जेक्ट है, वी कैन एडजस्ट द आईपीस, उसको हम सेट करके, दिस इज़ द लेंस एंड मिरर्स जो हम यूज़ करते हैं. ये हमारा टेम्परेचर इंडिकेटर जो लगा होता है, उस रेडिएशन को हम कन्वर्ट करते हैं किस, उस टेम्परेचर इंडिकेटर से. ये हमारा होता है ऑप्टिकल पैरामीटर. वी आर यूजिंग द एक इसमें एक और आता है जो कि हम डिस्कस करेंगे भी आगे, कभी ज़रूरत मिल रहा है तो वो यार यूज द ऑटोमेटिक मेजरमेंट करना है. तो वहाँ पे हमारा एक होता है ऑटोमेटिक, वी आर कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देन वी कंसीडर द ऑप्टिकल पैरामीटर एज द ऑटोमेटिक पैरामीटर. तो ये हमारे हैंड नॉन कॉन्टैक्टलेस होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं, इसमें कहीं टच नहीं कराना होता है, वी कैन जस्ट सी इट, एडजस्ट करते हैं और टेम्परेचर का कलर देखते हैं, उस कलर को जो भी हमने कैलिब्रेट कर रखा है जो मैच करता है वो हमारा होता है. तो जहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा है वहाँ पे हम नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के मेजरमेंट करते हैं. वो इसलिए हमारा इंफ्रारेड सबसे एडवांटेज इसकी बहुत अच्छी है. इट कैन बी मेजर टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. आपसे बात ही कर रहे थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हम बिना किसी कॉन्टैक्ट के इस ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं.
फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि हमें कोई कन्वर्जन नहीं है, वी कैन यूजिंग डायरेक्टली इफ आर मेजर द रेडिश कलर ऑफ द that radiation we are receiving from lens reddish color, that means the temperature between the 1000 to 1500 degree centigrade. So, we can decide the scale 1000, 1100, 1200. So, directly we can measure the temperature. There is a, this is shows the fast response, good stability while measuring temperature of the object, क्योंकि the range is fixed, the lens is fixed, radiation when you everything is fixed. तो जो हमने कैलिब्रेट कर दिया वो हमारा फिक्स है, उसको हम चेंज, येलो लाइट है तो हमारा 700 डिग्री सेंटीग्रेड जस्ट रेडिएशन, वी कैन मेजर विद द रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ. तो आई एम आस्किंग जनरल पर्पस वी कैन यूजिंग द कलर, हम कलर देख के बताते हैं, उस कलर के नीचे हम क्या सेट करते हैं, हम उसकी कोई वेवलेंथ सेट कर देते हैं, उस वेवलेंथ पे हमारा इतना 0.1 आ रहा है तो इतना 0.2 आ रहा है, इतना 0.3 आ रहा है, तो वो हम कैलिब्रेट करते हैं. सारे हमारे जितने भी ट्रांसफर सब में हम उस वेरिएबल के हिसाब से कैलिब्रेट करते हैं. तो ये हमारा होता है कि इसीलिए हमारा क्या होता है, स्टेबल रहता है, क्योंकि एक बार फिक्स कर दे वही उसी के आसपास आएगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट टेम्परेचर वेरिएबल डिस्टेंसेस, पैरामीटर जनरली एंड एक्सपेंसिव, थोड़े से ये महंगे होते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इस पर अभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं रिमोटली, लेकिन एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं कि वी आर यूजिंग द, आपका ऑप्टिकल पैरामीट्री पूरी यूज़ होती है इसके अंदर, ठीक है. कैन बी इफेक्ट ड्यू टू द डिफरेंट कंडीशन लाइक डस्ट. अब क्योंकि ऑप्टिकल लेंस लगा हुआ है तो उस पर डस्ट आ जाएगी, स्मोक आ जाएगी, या कोई थर्मल रेडिएशन उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द पैरामीटर. आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं और डस्ट आ गई उसके ऊपर, या डस्ट का क्या होता है जब मैंने मेजर द, वी आर यूजिंग सम ड्यू इज ऑल्सो क्रिएटेड इन दिस. तो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, मेटलर्जी इंडस्ट्री, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, बलून मेजर द हीट ऑफ द बलून, स्टीम टेम्परेचर, देन वी प्रेफर द, जहाँ पे फर्नेस होती है वहाँ पे अगर हमें मेजर करना होता है वी कैन यूजिंग थर्मोकपल्स, बट जहाँ पे कॉन्टेक्टलेस हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना है देन ऑलवेज प्रेफर द हाई रेडिएशन मोर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी प्रेफर द योर this pyrometers, that is very useful device for the temperature measurement, the non contact type. This is the main important parameter is your non contact type. Thank you. Just you can see the some measuring devices. ये अलग अलग है, जैसे थर्मोकपल्स, प्लैटिनम थर्मोकपल, स्टैंडर्ड, दिस आर द रेंज, दिस इज द टेम्परेचर 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, देयर इज द अनसर्टेनिटी. तो ये जिस जस्ट कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस, ये कैसे करते हैं, क्या एक्यूरेसी है, ये एक दिखाने की कोशिश की है. ज़रूरत पड़ती है हमें इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, इसलिए ये लगा हुआ है. थैंक यू.